जिस तरीके से लोकसभा में संसद में बफ पर जो चर्चा चल रही है उसमें किरण रिजिजू ने जो ये विधेयक रखा है और उस पर सारे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। तरुण गोगोई जी ने जिस तरीके से बोला है, सांसद असम से हैं, उसके बाद अन्य विपक्ष के लोगों ने, और अभी अखिलेश यादव उस पर काफ़ी बोल रहे हैं। जिस तरीके से पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर अभी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। In Vidya Bharati Tirtha versus Gulsami Ayat, long before, Mr. Amir Ali, who delivered the judgment of the board, observed that it is to be remembered that a trust in the sense in which the expression is used in English law, when the gift is directly to an idol or a temple, the season to complete the gift is necessarily affected by human agency. Called by whatever name, he is only the manager or custodian of the idol or the institution. In no case is the property conveyed to or vested in him. Similarly, that is the basic difference. The Honorable Minister, he was speaking about the Hindu trust. The Muslim law relating to trust differs fundamentally from the English law. Hindu trust follows English law. Muslim law doesn't follow English law. That is a basic difference. Mr. Amir Ali said the Mohammedan law owes its origin to a rule laid down by the Prophet of Islam and means the tying up of a property in the ownership of God the Almighty and the devotion of the profits for the benefit of the human beings. As a result of the creation of a waqf, the rights of the waqif is extinguished and the ownership is transferred to the Almighty. It is religious. If it is religious, comes within the ambit and scope of Article 26 of the Constitution. The manager of the Waqf is the Mutawalli, the governor, superintendent, curator. But in that capacity, he has no right in the property belonging to the Waqf. The property is not vested in him and he is not a trustee in the legal sense. Therefore, there is no doubt that the Waqf to which the Act applies is essentially features different from the trust as is known to English law. In Sarabanu versus Union of India, 2017, volume 9, SCC, page 1, the Constitution bench held that any legal provision should be made with the application of known principles of law. If any decision is taken without supporting principles of rule of law, it becomes unpredictable and such a decision is antithesis of a decision taken in accordance with the rule of law. This proposed bill is just contrary to the well-settled principles of law which is established in the country by the judgments have been pronounced not only by the Privy Council, by the Supreme Court of India also. Madam, the various provisions of the Waqf Amendment Bill 2024 is manifestly arbitrary and therefore cannot be passed by the Parliament itself. The Waqf system in Islamic tradition stands as a testament to the enduring values of charity, community, welfare, spiritual dedication rooted in the principles of Sadaqat Jariyah. Waqf in India, Waqf properties form the backbone of the Muslim communities, social, cultural and religious life, playing a pivotal role in maintaining their collective identity. This endowment sustains mosques, madrasas and cemeteries while providing essential resources to marginalized section of society, especially in an environment where minority communities often struggle for equitable access to public purposes. This is not there. Equality, equitable access is not there in case of the Muslim. That is the reason we are opposing. Over the years, excessive government oversight has raised concerns about the erosion of the autonomy and sanctity of Waqf, which under Islamic law is intended to function independently to serve its religious and charitable purposes. At the heart of the Waqf system administration lies the State Waqf Board, while act as custodian of Waqf properties, ensuring their proper management and alignment with the purposes by Islamic law. These boards have consistently
work to protect Waqf properties from the mismanagement. Madam, the Waqf was essentially first introduced in 1953. Mr. Riju, the Honorable Minister has said, thereafter so many acts, then 1995 Act has come, Amendment 2013, now it is coming. Now by introducing Clause 2, the title of the Act has been amended, Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development. There is no rational basis to make such amendment of the title of the Act. Every Act is intended to make the Act more efficient and development purposes. As for example, the Companies Act was enacted in 1956, thereafter re-enacted in 2013. The Act was brought to regulate the management, empowerment, efficiency and development of the control of the companies. The Waqf Act 1995 had various provisions for management, empowerment, efficiency and development. Therefore, the said proposed amendment to the title is wholly unwarranted. The title, which is being used nearly for 75 years, has no necessity to be amended unless the government wants to have the satisfaction that something new has been done. The proposed amendment to the Waqf Act, which includes a tacit attempt to alter or dilute the historical and religious significance of the term Waqf, is deeply concerning and warrants strong objection. The term Waqf is not merely legal or administrative level. It is a sacred concept deeply rooted in Islamic tradition and jurisprudence. Why you are taking away this? Madam, they want to interfere in please, Sogadda, please. The historical development of Waqf legislation in India, from the Bengal Waqf Act 1934, Uttar Pradesh Muslim Waqf Act 1960, the Waqf Act 1954, and the subsequent unification under the Waqf Act of 1995, has always retained the sanctity of the term. These laws, while designed to provide statutory governance, have consistently respected the essence of Waqf as a concept grounded in Islamic law. Madam, insertion of Clause 2A. Insertion of Clause 2A tantamount to nullify all earlier judgments, degree and orders of any court in respect of the Waqf and the trust. This attempt is basically taking away the rights of the Muslim, which they have accrued. Any attempt to nullify the Supreme Court judgment by legislative process is illegal and unconstitutional. Clause 3, Roman 9 of the proposed bill that said various sects and subsects have been created. This attempt to create subsects without having any rational object is not a good sign for any religion, caste or creed. If the constitutional provisions empowers the parliament to create caste, subcaste or subclass, only then the parliament can do so. Like the scheduled caste created inside Hindus, but the constitutional provision does not empower the parliament under the guise of the Waqf Amendment Bill 2024, create Aga Khani Waqf, Bora Waqf, etc. The intention to legislate such kind of classification of Waqf board based on subsects, the ruling party in the government is having evil intention. If the title speaks about unification, creation of various Waqf board on the basis of subsect itself creates a de-unification between the sects and subsects of the Muslims. Madam, Clause 3FA of the said proposed bill defines government organization including municipalities and panchayat and autonomous bodies of the state and central government to a Part 9A of the Constitution. Under the scheme of Part 9A, the municipalities and the panchayats are self-government and autonomous bodies. How the properties of the self-government bodies can be treated as a government properties, madam? In a constitutional provision it has made it. By now, by this law, panchayat and municipality has been described as a government properties. It is not a government properties, local self-government bodies. Therefore, there is a distinction. Therefore, this provision is bad. Madam, introduction of definition of the government property seems to be mischievous. Why Waqf will be allowed to define government property? This is an attempt
legalize illegal occupation or waqf property by government organizations. Another sin is there. In our JPC, we have said repeatedly, give us the data what the government has occupied the property. Nothing is there. And in Rajasthan, it is a cases, extreme cases. 80% of the property of the Rajasthan, Waqf property has been occupied by the Rajasthan government itself. Practicing Islam for at least 5 years is a precondition for making Waqf is thoroughly unreasonable, irrational and manifest arbitrary. Under the scheme of the Constitution of India, no person can be compelled to practice his own religion. If no person can be compelled to practice his own religion, then such persons cannot be debarred either to offer his property to God or whether he is Hindu or Muslim or any other religion. Practicing religion means day-to-day performance of his religious duty. In a secular democratic country like us, no one can compel to perform any religious duty. Even such a provision cannot be made either in the Constitution or in any other statute. No mandatory provision can be made for practicing Islam for at least 5 years for making waqf. Even if I discharge my religion. आप ये देख रहे थे लोकसभा की सीधी कार्रवाई, और लोकसभा की सीधी कार्रवाई में जो चर्चा चल रही है, पक्ष विपक्ष जिस तरीके से बात कर रहा है, वह पक्ष चाहता है कि इसमें सारा विपक्ष भी साथ में इसमें समर्थन करे, लेकिन समर्थन की क्या करें, उसमें क्या खूबियां हैं, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सलीम राज जी जुड़े हैं, डॉक्टर सलीम राज। सलीम राज जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी। सलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज जिस तरीके से आप ने देखा, अभी जो हालात हैं उसमें केंद्र सरकार ने वहाँ किरण रिजिजू ने ये बिल रखा है, संशोधन बिल रखा है, और उस पर जिस तरीके से सत्ताधारी दल के मंत्रियों ने और सांसदों ने पक्ष रखा है, इस पे बताया है कि कोई भी सको सुबह नहीं है। यह आम गरीब जो हैं, जो नीडी हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतर होगा, यह कोशिश है उनकी। आप किस रूप में लेते हैं डॉक्टर सलीम जी कि यह जो बिल अगर आज पेश हो जाता है और पास हो जाता है, तो इसमें आपको लगता है कि जो गरीब वर्ग है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको इसका फायदा मिल पाएगा? ये मुस्लिम समाज के भाग्य विधाता का बिल है और गरीब तबका जो मुसलमान था उनके उत्थान का बिल है। यह वक्फ बिल पास होने से मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएंगी, और जो मठाधीश लोग हैं, जो मुतवल्ली लोग ने जो कब्जा करके रखा था, जो लोकसभा की कार्रवाई बोला गया कि मुतवल्ली और बिल्डर की साठगांठ से या करोड़ों अरबों रुपए की जमीन बेच दी जाती थी और मुस्लिम समाज को उत्थान नहीं हो पाता था। अब शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, अन्य क्षेत्र में देख लीजिए, सिर्फ आज करोड़ों रुपए की जमीन है और लाखों एकड़ जगह रहने के बाद भी मुसलमानों की हालत आज दलितों से बेकार है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम समाज का विकास चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो ये वक्फ बिल आ रहा है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये सोचना चाहिए। हमेशा अच्छा बिल आ रहा है तो खराब बिल है तो बताना चाहिए खराब क्या, खराबी बता नहीं रहे, बस बोल रहे खराब है। तो ये सिर्फ मुस्लिम समाज के उत्थान का बिल है और मुसलमानों को विकास होगा ये वक्फ बिल से, और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ये बिल का समर्थन करती है। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी जैसा लोकसभा में बताया जा रहा था कि 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने समर्थन भी किया है, उनसे डिस्कशन भी हुआ है, तो जिस तरीके से भोपाल में आज हमने देखा कि सैकड़ों महिलाएं मोदी जी की फ़ोटो लेके और मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रही हैं और इस बिल का समर्थन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से, चूँकि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप कह रहे हैं पूरा छत्तीसगढ़ से समर्थन है, क्या देश के अन्य राज्यों में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के राज्य बिहार में हुआ है, जिस तरीके से नायडू जी के राज्य में हुआ है, आंध्र प्रदेश में, ऐसा और राज्यों से भी समर्थन मिल सकता है? लगभग राज्यों से समर्थन मिल रहा है, और चूंकि जिनके पेट में दर्द हो रहा, जो मठाधीश लोग हैं, मुतवल्ली है, समाज के गरीब तबका और जनरल मुसलमान ये वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। तरीके से डॉक्टर साहब, चूंकि आप इसी से जुड़े हुए हैं, ये जो कंसेप्ट क्लियर कीजिए जरा। अभी लोकसभा में गृह मंत्री जी ने भी इस बात पर कहा था और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने भी कहा था कि
इतनी संपत्ति है, लेकिन वह गरीब मुसलमान समाज के लोगों के उपयोग के लिए नहीं आ पाती है। उसे कुछ ही लोग उसका संचालन करते हैं। तो ये हमारे देश के दर्शक, जो लाखों करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, उन पर थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि ये कैसे इसको किया जा सकता था और क्या प्रधानमंत्री जी का या माननीय गृह मंत्री जी का विजन है इस पर। वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वह बोर्ड अपने उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पा रही थी। सामाजिक उत्थान के लिए, विधवा, तलाकशुदा, विधुर महिलाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर पाते। आज जो जितनी भी जमीनें हैं, जमीनों में सिर्फ काबिज है हमारे मुतवल्ली और समाज के प्रमुख लोग। और आज उसका किराया 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। रायपुर की एक मकान किराया तो 80 पैसा, आज 5 रुपए में चाय आती है और 80 पैसा मकान किराया है। तो ये सबसे बड़े समाज के दुश्मन कौन है? और लगभग जो प्रॉपर्टी में 85% यही लोग काबिज है। 5 रुपए किराए में वक्फ बोर्ड से लेते हैं और दूसरे को देते हैं 25,000 रुपए में। 24,000 रुपए अपने जेब में रखते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल ला रहा है, तो आज 2500 रुपए किराया आऊंगा, अरबों रुपए की आमदनी पड़ेगी जो समाज के उत्थान के लिए लगेगा। आज हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा। शिक्षित होने से राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। डॉक्टर सलीम जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक आपको मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है हम आपको ये सुनवाते हैं। उसके बाद हमारे साथ संतोष पांडे जी, संत जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से आहना पुंज भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कहा है हम ये सुनते हैं। पहले विश्वास सारंग जी ने। वक्फ संशोधन जो बिल आया है, उसको लेकर वो चंद करोड़पति अरबपति नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर आज जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वो इस बात का परिचायक है कि चंद वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं। देखा आपने जिस तरीके से, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा, मैं आहना जी, चूंकि आप सुबह से इस मुद्दे पर लगे हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर सलीम राज जी भी जुड़े हुए हैं। हम अभी उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, और संतोष पांडे जी भी हैं। एक बार अभी तक की कार्रवाई हमारे दर्शकों को ब्रीफ कीजिएगा, क्योंकि आप पल पल की जानकारी आपको है। अभी तक अखिलेश यादव से लेके और बनर्जी जी, कल्याण बनर्जी जी अभी बोल रहे हैं सदन में, और इसके पहले सरकार ने साफ कर दिया है कि इसमें मनसा, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको बेहतर करने के लिए, उनका जीवन बेहतर करने के लिए ये मंशा रखी गई है। लेकिन विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है कि यह सरकार की हिटलरशाही है, तानाशाही है। ये इसको बड़ा आप क्लियरिफाई करिए। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आज देखने को भी मिली है। अब आपको मैं बिल के क्रम अनुसार यहाँ चीज़ें भी बता देती हूँ कि आज क्या क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले किरेन रिजिजू ने जब बिल पेश किया, बिल में क्या कुछ खास है वो तमाम जानकारी दी गृह मंत्री अमित शाह के बोलने के बाद, कि इसमें हमारी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये पारदर्शिता के लिए, ये तमाम कानून अगर आ रहे हैं तो महिलाओं के भले के लिए आ रहे हैं। इसमें संशोधन सिर्फ इसी बात का है। उधर अगर बात करें तो जब कांग्रेस की तरफ से गोगोई बात करने लगे तो गोगोई ने कहा कि यहाँ पर, क्योंकि किरेन रिजिजू ने साफ किया कि सन 2014 में जो 123 प्रॉपर्टी है ये वक्फ को ट्रांसफर की गई थी यूपीए सरकार के तहत। ये इन तमाम बातों को गोगोई ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी झूठ बोल देते हैं। अब इससे हटके जब अखिलेश यादव से बातचीत हुई तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो सरकार है संशोधन सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि फायदा लूट सके, ताकि तमाम जमीनों पर अपना कब्जा कर सके और सरकार के अधीन आ जाए। अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया कि जब महाकुंभ के दौरान जो मौत हुई है लोगों की, इस मामले को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, हाईलाइट किसी और मुद्दे को कर दिया जाता है। इसी दौरान अखिलेश यादव ने अरुणाचल प्रदेश का भी जिक्र किया कि वहां पर चीन जो हमारा कब्जा कर रहा है, उस जमीन पर तुमसे बात नहीं होती है। वक्फ की जमीनों पर बात करने के लिए तुम तमाम चीजें यहां पर बोलते हो संसद के अंदर। संसद को बाहर अगर लिखा जाता है सत्यमेव जयते, लेकिन अंदर असत्य बोलकर बीजेपी अपने सारे कानून बनवा लेती है।
और अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इससे कारोबार बढ़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कैसे कारोबार बढ़ेगा जब ऑलरेडी वो तमाम जमीन वक्फ के अंडर ही रहेंगी। सिर्फ आप तो पारदर्शिता की बात करते हैं। और कल्याण बनर्जी का मैं आपको बता दूं शिशिर जी, कल्याण बनर्जी ने भी कह दिया कि टीएमसी इस बिल के अगेंस्ट है, क्योंकि टीएमसी लगातार ये बातें करती है कि अगर ये बिल आया, वक्फ को संशोधन इसमें हो रहा है, उनके मुस्लिम समुदाय के या कुछ खास विशेष समुदाय के कानूनों का उल्लंघन होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। जी शिशिर जी। बिल्कुल आना जी। और उसके साथ अभी ये भी कहा, जिस तरीके से किरण रिजिजू जब बोल रहे थे कि इसमें हम तो सिर्फ बिल पास करके और राज्य सरकारों के पास पूरे अधिकार रहेंगे। ममता बनर्जी जी बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके पास अधिकार होगा। अगर छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब उसके अध्यक्ष हैं सलीम राज जी, तो इनका अधिकार होगा, ये उस पर जो निर्णय करेंगे वो मान्य होगा। सिर्फ महिलाओं को जोड़ लेना या अपील की, आगे अपील की जा सकती है अगर कोई गलत निर्णय होता है, तो इस पर इतना हंगामा क्यों है? हम श्री हिंदू धर्मगुरु पांडे जी के पास आना चाहते हैं। संतोष पांडे जी, आपने अभी आहना जी की बात सुनी, डॉक्टर सलीम राज जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को भड़काने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यह स्पष्ट तौर पर कि जो अपने निजी हितों की बात कर रहे हैं, जिनकी निजी रोटियां अब बेकार हो जाएंगी, जो हमारे भावनाओं के साथ व्यापार करते थे, जो हमारे आत्मीयता का सौदा करते थे, उन लोगों की व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो गई है कि उनके हाथ से एक ऐसी चीज निकल गई कि जो वर्षों से उसके आधार पे ये लोग एक जातीय व्यवस्था का शोषण करते चले आए जी। और जैसे कहते हैं, हमारे यहाँ बोला गया है जयचंद, तो ये जयचंदों को ये परेशानी है वक्फ बोर्ड से जी। ठीक है जी। और अगर इसका देखा जाए तो इसका धार्मिक तौर पे किसी हिंदू मुस्लिम व्यवस्था के तौर पर यह नहीं है। यह वक्फ बोर्ड का जो बिल आज सदन में पेश किया जा रहा है, इसका सीधा एक मजबूत और सत्य का सहयोग के रूप में इस्लाम धर्म के अनुयायियों को प्राप्त होगा और उनके संरक्षण और सुरक्षा को लेकर के, उनके आर्थिक स्वावलंबन को लेकर के, उनके हितों की रक्षा को लेकर के सरकार ने यह कदम उठाया है। तो यह सभी लोगों को गले से लगाना चाहिए सरकार के इस फैसले को। और इसमें कोई जातीय कट्टरपंथ विचारधारा की बात कहीं से दिख नहीं रही है। हालांकि लोग जो विधर्मी लोग हैं, जो धर्म के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनकी सेहत के लिए यह खबर बहुत बुरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह बहुत सुंदर प्रसंग जो आज संसद में चल रहा है, ये आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा करेगा भारत भूमि पर। बिल्कुल। संतोष जी, एक बात अभी डॉक्टर राज ने हमसे कही थी और शायद मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत होंगे, आहना जी भी सहमत होंगी और देश की जनता भी सहमत होगी कि हजारों लाखों रुपए आता है जिसका उपयोग वो अपने तथाकथित कुछ लोग अपने ही इस्तेमाल में करते हैं, जबकि अब ऐसा ही सरकार की मंशा है कि उस पैसे का गरीब मुस्लिम परिवार के लोगों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनके वेलफेयर में, उनके आगे बढ़ाने के लिए खर्चा किया जा सके। यही सोच लेकर इस तरीके का बिल पेश किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इसमें जो जैसा डॉक्टर राज ने कहा है, क्या आपको लगता है कि इस पैसे का सदुपयोग होगा? बिल्कुल सदुपयोग के साथ साथ एक जो मानसिक स्वावलंबन है जी, वह सबसे बड़ा प्राप्त होगा जी। क्योंकि अर्थ इस समय सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यदि आप अर्थहीन है, उद्देश्यहीन है, आपके पास सुबह शाम की खाने की समस्या है, आपके भविष्य में आपने शिक्षा प्राप्त किया है तो उसको रोजगार पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो इन कई क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड के बिल पास होने से लाभ होगा। और आपको एक सबसे बड़ी बात इसमें बता दे कि जो लोग इसको एक तूल दे रहे हैं, राजनीतिक तूल दे रहे हैं या धार्मिक तूल देने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग राष्ट्रभक्त नहीं है, ना ही धर्म भक्त हैं। तो आपके मंच से मेरे सभी लोगों से मेरी यह एक भावनात्मक अपील है कि अगर
उन वर्गों के लोगों के लिए कि जहां पे आप कहते हैं नहीं हम दीन है, मजलूम है, ऐसे शब्दों का जहां पे आप इस्तेमाल करते हैं, तो आज उन्हीं दीन और मजलूम लोगों के लिए, और वो भी किसी अन्य वर्ग के लिए नहीं कि वक्फ बोर्ड से पैसा आएगा तो किसी अदर रिलीजन को के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये आपके ऊपर ही खर्च होने वाला है, आपकी कम्युनिटी पर खर्च होने वाला है। तो इसका राजनीतिकरण ना करके, इसका विरोध ना करें कि इसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं जिससे हमारी स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसा बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है, बल्कि बिल में जो ऊंचे लेवल पे बैठ करके बिल के पूरे धनराशि को हजम करने वाली सोच को रखने वाले लोग थे, जो वर्षों से करते चले आ रहे थे, उन पर रोक लगने का यह एक बहुत अच्छा प्रयास देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और उनको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रिजिजू जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने, मतलब ये एक धर्म, यह होती है धर्मनिरपेक्ष बात जी। तो आज ये मैं किसी दलीय बात से मैं प्रभावित होकर के नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है आज का फैसला, सदियों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ पांडे जी बने रहिए। डॉक्टर सलीम राज हमारे साथ हैं और हमारे साथ पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं। सलाम रिजवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलीम राज जी से बात करने के बाद आपके पास आ रहा हूँ। क्या सलीम जी, जैसा आपने अभी सुना कि यह देश के इतिहास में मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आपके ही बताए अनुसार हजारों करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसका सदुपयोग होने लगेगा। वर्षों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, किरण रिजिजू जी थे, जो एक ऐसा कानून लाया जो मुसलमानों की तरक्की, आज पंचर बनाने, हर चौथा पंचर बनाने वाला मुसलमान मिलता है, हर चौथा ड्राइवर मुसलमान मिल जाता है, हर चौथा खोमचे में काम करने वाला मुसलमान मिल जाता है। उनकी तरक्की वाला बिल है। यह बिल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के मुसलमानों के तरक्की और विकास का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आज जो कानून पास हुआ है उसको वर्षों याद रखा जाएगा कि तलाकशुदा, विधवा, महिला, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। बिल्कुल सलीम जी, हम आपके साथ खड़े हैं, बने रहेंगे। हमारे साथ पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सलाम रिजवी जी? जी 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 सलाम जी, जिस तरीके से अभी हमारे राज साहब ने, डॉक्टर राज ने कहा है, सलीम राज जी ने, और जैसा संतोष पांडे जी ने कहा है, किस रूप में लेते हैं आप यह वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है, ये देश की तरक्की के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों की तरक्की के लिए, ये इसका क्या योगदान होगा और कितना सार्थक होगा? सलीम, वक्फ संशोधन समय समय पर होते रहा है। अभी भी अगर कोई संशोधन आ रहा है तो इसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ना तो मुस्लिम समाज ने यह डिमांड रखी कि इसमें संशोधन किया जाए, ना ही ऐसा कि मुसलमानों से इसको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, कहीं दिखता नहीं। जो पहले प्रावधान थे, जो पहले नियम कानून बने थे वक्फ में, उसका ही हम पालन कर लेते तो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मोदी जी अगर मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो 11 साल में तो दिखा नहीं, सिवाय मुसलमानों के मकानों में बुलडोजर चलाने के अलावा कुछ मोदी जी ने ऐसा कुछ तो करके दिखाया नहीं। और देश के बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कोई 15 साल से है, कहीं 20 साल में है, आप कहीं तो 25 साल में। आप गुजरात में ही देख लीजिए, 25 साल से ऊपर हो गया भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ पर। वहाँ के वक्फ बोर्ड ने क्या किया मुसलमानों के लिए? कितनी जमीनें खाली कराई, वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार खत्म किया। वहाँ पर तो उनकी सरकार है, वहाँ उनका वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और भी जहाँ पर इनकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में आज 15 साल से ये बैठे में, तो वहाँ पर तो कोई अतिक्रमण नहीं हटाया। क्या इसके लिए कानून कौन? पहले तक कानून बना हुआ है, आपने उस कानून का उपयोग क्यों नहीं करा? तो ये एक लॉलीपॉप बताना कि मुसलमानों के लिए हम कर रहे हैं, तो मैं इसको नहीं मानता। अगर आपकी मंशा है तो मुसलमानों के लिए आप कोई अलग से पैकेज लेके आइए, और नहीं तो ये मात्र तुष्टि, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं तुष्टिकरण की राजनीति करती, तो आप भी ये तुष्टिकरण कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के लिए अच्छा सोच रहे हो तो ये भी तो तुष्टिकरण कहलाएगा ना। आप गैर मुस्लिमों के लिए अच्छा क्यों नहीं सोच रहे हो? आप मड बोर्ड बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? आप सनातन बोर्ड बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो?
आपको सनातन सबसे पहले जैसा वक्फ बोर्ड बना है आप वैसे ही मठ बोर्ड बनाइए, ताकि मठों की प्रॉपर्टी कुछ ही चंद मठाधीशों ने कब्जा करके बैठा है। जी वक्फ की प्रॉपर्टी को आप छोड़ दीजिए। आप जिनके बल पे जहाँ कुर्सी में बैठे हैं उनके लिए मठ बोर्ड बनाइए, उस मठों के मठाधीशों को हटाइए और वहां पर मठ की प्रॉपर्टी से आप स्कूल कॉलेज बनाइए। उस समाज के लोगों को, जिन समाज की वो प्रॉपर्टी उसको फायदा मिले। मात्र किसी एक मठाधीश के लिए वो प्रॉपर्टी नहीं दी गई है। आप सनातन बोर्ड बनाइए, सनातन के लिए काम करने के लिए उनको जगह मिलेगी कि सनातन है क्या, लोगों को बताने के लिए करेगा। आप उस लाइन में काम करिए। आप मुसलमानों को उंगली करने वाला काम क्यों कर रहे हो? मुसलमानों के लिए इसमें क्या फायदा, क्या चीजें, आप विस्तार से बताइए कि इससे क्या क्या फायदा होगा। और मैं आपको बताता हूँ, प्रावधान पहले से उसमें विहित है जी। अलग से, इसमें कहीं कोई चीज नहीं है। आप 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखना चाहते हो वक्फ बोर्ड में, आप क्या कर लेगा वो आदमी? जी आप किसी मठ मंदिर में क्या बोलते मुस्लिम सदस्यों को रखोगे? गुरुद्वारा समिति में मुस्लिम सदस्यों को रखा पाओगे? जी। तो जहां पर आप मुसलमानों के अच्छे की बात करते हो, तो फिर आप तो इस देश में भाइयों को लड़ाने वाला काम कर रहे हो। फिर ये भी मांग उठेगी कि जितने मंदिरें हैं उसमें क्या बोलते मंदिर बोर्ड में भी मुस्लिम समाज के सदस्य रहना चाहिए करके, तो वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त होती है। ये सारी चीजें करना नहीं चाहिए। शासन में बैठे हैं तो अगर के आप किसी समाज विशेष के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो ईमानदारी से करिए, अच्छा काम करिए। आज मुसलमानों को जिस चीज की जरूरत है उस लाइन पे अगर काम करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए सलीम जी। हमारे साथ डॉक्टर सलाम रिजवी जी ने अभी जो कहा है, सलाम जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब मैं डॉक्टर सलीम राज जी के पास आना चाहता हूं। आपने डॉक्टर साहब बात सुनी, आप चूंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये सलाम साहब का जो कहना है कि ये वक्फ बोर्ड ऑलरेडी काम कर रहा था, ऑलरेडी उस आपकी हर जगह सरकारें हैं, तो फिर क्या समस्या आ रही थी उसमें? क्यों, कहाँ इतने संशोधन करने की आवश्यकता है? और पहले भी संशोधन होते रहे हैं। जी राज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अच्छा, चलिए, वो कुछ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मैं अभी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी जी से बात कर रहा था और सलाम जी ने बड़े बेबाकी से कहा है कि ये संशोधन लगातार होते रहे हैं और होते रहते हैं। इसमें सिर्फ तुष्टीकरण की नीति की जा रही है। क्या उनका ये मानना है? उनका ये भी कहना है, जब तक सलीम राज जी जुड़ेंगे तब तक मैं बता दूं आपको कि उनका ये भी कहना है साफ शब्दों में कि क्या मठों का बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता, और अगर मंदिरों में भी अगर आप वक्फ में मुस्लिमों के अलावा गैर मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं तो आप उसमें मंदिरों में, मठों में भी मुस्लिम समाज को या सिख समाज को या जैन समाज को शामिल करेंगे क्या? यह बड़ा सवाल है और इसी पर चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ अभी चूंकि संतोष पांडे जी जुड़े हुए हैं, जब तक सलीम राज जी जुड़ेंगे जब तक हम संतोष पांडे जी के पास आना चाहते थे। संतोष जी, चूंकि जैसा आपने अभी पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कहा है और अभी जैसा बताया है, आपको लगता है कि अभी की जो स्थिति है उसमें ये इनका प्रश्न सामयिक है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो अपने, क्योंकि पूर्वत आप जो है वक्फ बोर्ड में आप रहे हैं जी, तो थोड़ी देर पहले मैंने वक्फ बोर्ड से संबंधित विचारधारा को रखा जी। लेकिन एक सरकारी तंत्र की व्यवस्था यह है वक्फ बोर्ड, इसमें धार्मिक तंत्र क्यों मिला रहे हैं? मठों की व्यवस्था धार्मिक तंत्र की है। जिस तरीके से इनको ये ऐतराज है कि 2 लोग आखिर क्यों वो गैर मुस्लिम लोग क्यों रखे जाएंगे बोर्ड में, तो ये है वक्फ बोर्ड। यह कोई हमारा जैसे हमारा मंदिर होता है, जैसे आपका मस्जिद होता है या सिख भाइयों का गुरुद्वारा होता है, क्रिश्चियन का चर्च होता है, तो ये उस टाइप का एक ऑफिशियल स्पेस है वक्फ बोर्ड का आपका, ठीक है ना, जो यह निर्णय लेती है कि हमारे दीन को मानने वाले या दीन में रहने वाले या जो काफिर नहीं है या जो हराम का काम नहीं करते हैं, जो हलाल की जिंदगी का करते और खाते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, जो नस्लें आ रही हैं आने वाले दौर की, उन नस्लों के लिए बेहतरी के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। आपका जो बयान रहा इनका आपका कि यह एक भावना से ग्रहित मतलब पीड़ित है, ठीक है ना,
और जब तक ये भावना रहेगी, चाहे वो हिंदू पक्षकार हो, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके विकास में, राष्ट्र के विकास में बाधक है। दूसरा चीज कि आपकी जो बातें रही, कुछ बातें जो है आहत करने वाले शब्दावली में रही कि पूर्वत ये रहा, वर्तमान ये रहा। भाई पूर्वत और वर्तमान की बातें करेंगे तो ये राम मंदिर से लेकर के और जहां तक देश का इतिहास देखेंगे, चाहे वो किसी कालखंड का इतिहास हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडवल हिस्ट्री हो, चाहे वर्तमान का भारत हो और विश्व हो, ठीक है ना, तो उसमें आप अपने को कहां पाते हैं और कितनी श्रेष्ठता का टैग आपके पास है, ये जरा सामाजिक मंच पे एक बार कहने की हिम्मत करके तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी। कुछ तथाकथित ज्ञान लेकर के पदारूढ़ होने से आपका व्यक्ति और व्यक्तित्व तो श्रेष्ठ नहीं हो जाता जी। आप सत्य की बात को स्वीकारिए कि अगर आपके पास इतनी कट्टरता है तो आप किसी ऐसे गैर मजहब, यानी जो आपके मजहब का ना हो, उससे दवा मत लीजिए, उसके यहाँ से सब्जियां मत खरीदिए, उससे हालचाल मत करिए। अगर इतनी जलन है, इतनी व्यवस्था है, और जो दो लोगों को सरकार ने नियुक्ति की बात करी है, तो आप इसका व्यक्तिगत आंदोलन कर सकते हैं कि ये हमारा कम्युनल सिस्टम है, हमारे अपने विचारक थे। अगर आपकी ये बात अगर ऐसी है, तो हमारे देश की माटी पर जन्मे हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भावना जो रही है राष्ट्र के प्रति, उसको आप आहत कर रहे हैं ऐसी बातें बोल करके। बिल्कुल वीर अब्दुल हमीद की आत्मा को आप आहत कर रहे हैं, जो मादरे वतन के लिए रहे और जिए और चले गए, देश को सब कुछ दिया जी। तो अगर आपको इतराज है तो आप सरकार से इस बात का विरोध करिए, उसमें संवैधानिक तत्वों की छेड़छाड़ की विरोध की बात मत करिए। वो आप उसमें ये बात कर सकते हैं कि हम गैर मुस्लिम को आपसे गुजारिश है या हमारा हक है, हमें उसमें गैर मुस्लिम नहीं चाहिए, तो बात आपकी थोड़ी सी लगती है कि नहीं ठीक है। जबकि यह एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट आपका व्यक्तिगत, मठ जो है वो मंदिर की व्यवस्था में आता है, वक्फ बोर्ड मंदिर की व्यवस्था में नहीं है। इस पे ही पूछ लेते हैं। चलिए आप संतोष जी बने रहिए, मैं आना के पास आऊँगा, उसके पहले सलाम रिजवी जी के पास आना चाहता हूँ। सलाम जी, जैसा अभी गुरु जी ने कहा, चूँकि आपकी बात सुनकर जो वर्तमान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ तकनीकी कारण हो सकता है या जानबूझ के, क्योंकि जवाब उनको देना था। और आपको लगता है कि यदि ऐसे मामलों में, चूँकि वक्फ का उद्देश्य आपने जो बताया बिल्कुल वो चूँकि आपका अपना सोच हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर उस प्रॉपर्टी का स्कूलों में काम होगा, अस्पतालों में काम होगा और समाज के गरीब तबके के विकास में काम होगा, तो इसमें कुछ हद तक इस हमारे अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों का भला हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका यूटिलाइजेशन अगर कहीं होगा तो सारे समाज के सारे तबकों के लिए होगा, किसी मुस्लिम समाज के लिए नहीं होगा। मैंने अपने कार्यकाल में एक स्कूल चालू करी थी वक्फ बोर्ड के तरफ से, और उसमें सारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टी इसलिए मुस्लिम बच्चे ही उसमें पढ़ेंगे या मुस्लिम ही लोग यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समाज तो एक है, सारे समाज के लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड, मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करता, जो बोर्ड में जो बैठे लोग हैं वो प्रॉपर्टी के लिए, आप हम अभी अमिटमेंट लाके हमको ये बताया जा रहा है कि इस अमिटमेंट से हम वक्फ में जो कब्जे उसको खाली कराएंगे। अरे तो उसमें तो पहले से प्रावधान है, वक्फ बोर्ड को कब्जा कराने के लिए पहले से प्रावधान ऐसा है कि वक्फ बोर्ड फैसला करता है और उसको अब ट्रिब्यूनल में चले जाता है। ट्रिब्यूनल में फैसले जल्दी होते हैं, कलेक्टर के माध्यम से कब्जे खाली होते हैं, लेकिन बोर्ड काम कहाँ करता है। मेरे को तो मात्र 11 महीने का काम करने का मौका मिला है, उसमें मैंने जो करते बना करा, लेकिन बाकी भी तो बोर्ड है पूरे देश में। वक्फ बोर्ड 36 वक्फ बोर्ड है, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए किसी कौन वक्फ बोर्ड कितना काम करता है। मैं खाली भारतीय जनता पार्टी के शासन इसमें राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, और कई जगह और भी दूसरे भी पार्टी का शासन है वहाँ पर है, लेकिन बोर्ड में सही मानों में काम नहीं। और एक ये एक गलत फहमी बनाई गई है वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों के बीच में। वक्फ बोर्ड 7% निगरानी चंदा लेता है वक्फ की संपत्तियों से, जिससे वक्फ बोर्ड चलता है। दूसरी चीज ये है कि वक्फ किसी भी जमीन को वक्फ बता के कब्जा कर लेते हैं, बात ये पूरी तरीके से निराधार और ये पूरी तरीके से गलत है। वक्फ सर्वे कमिश्नर है, जो लोकसभा में पारित कानून है,
उसका सर्वे कराता प्रॉपर्टी की। यदि कोई वक्फ प्रॉपर्टी होती है तो उसका सर्वे होता है, जिसमें आरआई, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, यहाँ तक के जांच होती है संपत्ति की। उसके बाद वक्फ कमिश्नर के पास जाती है, वो फिर उसको राज्य शासन को भेजता है, उसके बाद नोटिफिकेशन होता है, तब वक्फ संपत्ति कहलाती है। ऐसा नहीं कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ संपत्ति हो गई। ये तो लोगों को भड़काने के लिए, मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने के लिए, इस तरीके से वक्फ बोर्ड को बदनाम करने के लिए ये कहानी रची जाती है। वक्फ की संपत्ति कराने के लिए जब तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होगा वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। पुरानी जो वक्फ संपत्तियां हैं, हम राजा अगर महाराजाओं के टाइम की बात करेंगे तो वो वक्फ का से कोई लेना देना नहीं है। वो पुरातत्व विभाग में, चाहे ताजमहल हो, चाहे वो लाल किला हो, या जितनी भी ऐसी संपत्तियां हैं वो पुरातत्व विभाग के अंदर में है और वो केंद्र शासन के अंडर में है। तो ये तर्क देने का कि सारी कोई भी संपत्ति को वक्फ की बताती जाती है, मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी संपत्ति वक्फ की नहीं होती है। वक्फ भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या बोलते हैं वक्फ हलाल औलाद होता है, दूसरा होता है सार्वजनिक वक्फ होता है। सार्वजनिक वक्फ में भी दो किस्म की प्रॉपर्टी मिलती है, एक जो आम जन जो वक्फ करते हैं वो, और दूसरी संपत्ति होती है जो गवर्नमेंट देती है। कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट जमीन देती है, मस्जिद के लिए भी गवर्नमेंट देती है। जरूरत पड़ने पे कहीं पर अगर मस्जिद के लिए चाहिए तो शासन की तरफ से जमीन मिलती है। कब्रिस्तान के लिए भी शासन देता है। वो अवैध कब्जे कहाँ से हो गए? वक्फ के नाम से अवैध कब्जे कहाँ हो गए? और कहीं पर अगर अवैध कब्जे है तो आज के कानून में प्रावधान है उसको हटाने का, उसके लिए नया कानून ला के वाहवाही लूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ अच्छा करना है, अगर समाज के लिए कुछ अच्छा करना है तो अच्छी सोच के साथ अच्छी योजनाएं लेके आनी होगी आपको। ये उसी में आप थूक में सत्तू घोलने का काम करोगे और समाज को कोई फायदा नहीं होगा तो ये तो फिर आप तुष्टीकरण की बात करने लग जाते हो। अगर कोई हमारे लिए काम करता हो तो आप तुष्टीकरण की बात करते हो, तो आप पिए आपने अगर हमारे लिए करे ये भी तुष्टीकरण ही तो कहलाता है। बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत किसी के विरोध भी की बात नहीं करता। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप संशोधन लेके आ रहे हो इससे मुस्लिम समाज का फायदा होगा। और वहाँ पर जलेबी बांटी जा रही है, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो आप लॉन्ग टाइम में मुस्लिम समाज को आप क्या फायदा दे सकते हो? मोदी जी 11 साल हो गए, 11 साल में तो हमने खाली मुस्लिम समाज के घरों पे बुलडोजर चलते देखा है, उसके अलावा कुछ देखा नहीं है। अभी आपके पास में 4 साल और है, 4 साल आप मुस्लिम समाज के लिए कुछ अच्छा कर दिखा दीजिए। हो सकता है मुस्लिम समाज आपके खुद नारे लगाए, मोदी जी जिंदाबाद बोले, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सलाम जी आपके पास आऊँगा। आहना पुंज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आहना जी, आपने अभी सलाम रिजवी जी की बात सुनी, आपने हिंदू धर्म गुरु पांडे जी की बात सुनी, जिस तरीके से संतोष पांडे जी ने भी कहा है और सलाम रिजवी जी ने भी कहा है। आपको लगता है कि भ्रांतियां कुछ ज़्यादा हैं? ऐसा सलाम जी का कहना है कि जिस उंगली पर अगर वो जिस प्रॉपर्टी पे उंगली रख देंगे वो प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होता, उसका बाकायदा सिस्टम है। सलाम जी का साफ कहना है, क्योंकि अभी हमने ये सुना था कि लोकसभा की ज़मीन वो वक्फ की है, कुंभ मेले की ज़मीन वक्फ की है, वाराणसी की जो ज़मीन है वो वक्फ की है। इस तरीके का क्या र्यूमर फैलाई जाती है और र्यूमर फैला के राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल शिशिर जी, देखिए ये तो कहीं ना कहीं राजनीति मसला है ही। देखिए पूरा मामला ही राजनीति से जुड़ा है और कहीं ना कहीं राजनीति इसीलिए हो रही है क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ यहाँ पर खास होने वाला है। और क्योंकि रिजवी साहब कह भी रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए तमाम बातें हो रही है। लेकिन इससे इतर मेरा एक सवाल रिजवी साहब से जरूर रहेगा। सर, आप लोग कहते हैं कि हमारी बात को रखने के लिए हमें पटल नहीं दिया जाता, हमारी बात को रखने के लिए, हमारी आवाज़ को या हमारी जो मुद्दे हैं उसे रखने के लिए क्लैरिटी नहीं दी जाती है। मेरा एक सवाल रिजवी साहब आपसे जरूर ये रहेगा कि आप जरूर एशियन न्यूज के माध्यम से ये समझाइए कि इस बिल में संशोधन अगर हो जाता है तो इससे जो हम आपके समुदाय के लोग हैं उनका क्या नुकसान होगा। नुकसान तो मुझको दिखता नहीं। ये है कि जब कोई भी अगर बिल लोकसभा में लाया जाता है और वो सर्वसम्मति उसमें नहीं बन पाती है तो एक उसका तरीका होता है कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दी जाती है। उसमें सारे दलों के लोग मिलके उसमें जो आपत्ति रहती है उसमें आपत्ति में वो संशोधन करा के उसको फिर से पटल पर रख के पास कराते हैं। इसमें भी इसमें भी यही हुआ, वक्फ संशोधन बिल में भी यही हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दी गई। अब जो विपक्ष के जो लोग थे जो इस बिल में संशोधन चाहते थे, जिनके कहने पर जेपीसी बनी, उन्होंने 5 बिंदुओं पे उन्होंने संशोधन चाहा, उसको सरकार ने पूरी तरीके से नकार दी।
सरकार के पक्ष के जो लोग थे वो 14 पॉइंट में उन्होंने संशोधन चाहा, उसको पूरी सिफारिशों को स्वीकार कर ली गई। मतलब आप तो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। आपको उन 5 जब आप 14 से संशोधन स्वीकार रहे हैं तो आपको साहब मैं आपको जरूर यहाँ पर रोकूंगी। वही समझना चाह रहे हैं हमारा एशियन न्यूज चाह रहा है कि हम लोग जो बातें मुस्लिम समाज के लोग ये विरोध कर रहे हैं कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, तो आप एशियन न्यूज के माध्यम से समझाइए ना कि जब कोई नुकसान नहीं है या कोई फायदा नहीं है तो वो चीजें आपको जरूर समझानी चाहिए। जैसे सलीम राज जी कह रहे थे कि इसमें जो होता है मुल्तवी साहब बहुत गड़बड़ियां करते हैं या मौलाना साहब गड़बड़ी करते हैं या भ्रष्टाचार के मुद्दे होते हैं वो उजागर होंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, बीजेपी की सरकार या एनडीए कहती है। लेकिन इससे इधर आपने खुद अभी कहा कि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। जब नुकसान नहीं है तो विरोध किस चीज का हो रहा है ये समझना है। विरोध जो संशोधन, मेरा तो अपना मानना है कि जो संशोधन की आवश्यकता इसमें नहीं थी, जो है जो भी अभी तक के जितने भी संशोधन हुए हैं वो पर्याप्त हैं। ये संशोधन इसमें कुछ अच्छा करने वाली बात होती तो मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता कि नहीं ये वाला इस बिंदु पे अगर कोई संशोधन हो रहा है तो मुझको इस संशोधन, आप तो महिलाओं को रखने की बात कर रहे हैं, 2 महिलाओं का प्रावधान पहले से ही है। आप कलेक्टर को अधिकार देने की बात कर रहे हो, इसके पहले आप वक्फ सर्वे कमिश्नर है, आप उसके अधिकार में कटौती कर रहे हैं। आप कलेक्टर के पास अधिकार देने की बात कर रहे हैं। कलेक्टर एक निचले दर्जे का अधिकारी होता है। कलेक्टर जो है वो फ्रेश आईएएस होते हैं और वक्फ सर्वे कमिश्नर एक सीनियर आईएएस होता है। तो सीनियर आईएएस के अधिकार में कटौती करके आप फ्रेश आईएएस अधिकारी को अगर आप जो देते हो तो इसके लिए मंशा साफ दिखती है कि आप उससे जैसा चाहे वैसा काम कराना चाहते हो। आप किसी भी प्रॉपर्टी को आप उसको वक्फ की नहीं घोषित करके उसको आप किसी को औने पौने भाव में देना चाहते हो। ये कलेक्टर के माध्यम से सारी सब चीजें होती है। ये तो हमारी शंका है। और जो मैं वक्फ बोर्ड में रहा हूँ, मैंने चेयरमैन, तो मैंने जो चीजों को देखा है, समझा है, और वक्फ बोर्ड के पास में सारी शक्तियां हैं काम करने के लिए। बात अलग है कि बैठे हुए लोग चेयरमैन काम नहीं करते हैं, तो ये सारी सब गड़बड़ियां होती है। और मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूं, आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि वक्फ के नाम से कोई भी जमीन पे कब्जा नहीं किया जा सकता। ये बातें फैलाई जाती है कि ईडन गार्डन को वक्फ की बता दिया जाता है, आजाद मैदान को वक्फ का बता दिया जाता है। अरे किसी ने चलते फिरते राहगीर ने बोल दिया ईडन गार्डन मुसलमान अपनी बोल रहे हैं तो आप मान थोड़ी लोगे, आपको उसके दस्तावेज देखने पड़ेंगे। लेकिन ये न्यूज बड़ी तेजी से चल जाती है कि मुसलमान किसी भी संपत्ति को वक्फ की बता देता है, जबकि वो हो सकता है वो बताने वाला मुसलमान ना हो सकता है वो किसी की तरफ से बुलवाया गया हो मुसलमानों को। तो ये जो देश में जो राजनीति चल रही है मुसलमानों को बदनाम करने वाली, इस पे रोक लगनी चाहिए। नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो संशोधन हो रहे हैं उससे किसी भी मुस्लिम जो भी समुदाय के लोग हैं, जो भी अल्पसंख्यक, क्योंकि आपका ही पसमानदा समाज है जो इसके पक्ष में है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो विरोध अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है किसी भी सरकार को कि किस चीज का विरोध हो रहा है ताकि उस मसले पर जाके उसे हल किया जाए। किरण रिजिजू भी यही कह रहे हैं, रविशंकर यही कह रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम कल्याण बनर्जी के पास चले जाएं तो वो लगातार कह रहे हैं कि ये हमारे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, ये उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के खिलाफ है, वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जे करने के खिलाफ, कि कहीं ना कहीं इसका समर्थन हो रहा है तभी इस तरह का बिल ला रहा है। लेकिन अभी तक जनता समझ नहीं पा रही है, क्योंकि देखिए आप अभी पूर्व अध्यक्ष हैं, सलीम राज जी अभी प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। जब एक ही समुदाय के 2 लोग अलग अलग बातें करते तो जनता को समझ ही नहीं आता कि किसकी माने हमारा भला हो रहा है कि हमारा खराब हो रहा है। भला और नुकसान की बात क्या करें, जहां तक के हाँ सलीम राज साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, सलीम राज साहब बोल चुके हैं। आना जी का ये पूछना है कि अगर इस बिल से देश के पसमानदा समाज के गरीब मुस्लिम परिवारों को लाभ मिलेगा और जो तथाकथित कुछ लोग जो वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको नुकसान होगा, तो इसमें आम आदमी का भला है, तो इसमें विरोध करने का औचित्य क्या है? तो वैसा कोई कानून लेके आ जाए, जो कानून तो ऑलरेडी है। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा है, मैंने पूरा एक्ट को पढ़ा है। ऑलरेडी पहले से इस चीज का प्रावधान है कि वक्फ की जमीन पे जो 11 महीने से जिसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है वो अवैध कब्जाधारी कहलाता है। धारा 54 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करता है वक्फ बोर्ड।
पहले यह था वक्फ बोर्ड कार्रवाई करके सीधा कलेक्टर को भेज देता था कब्जा खाली कराने के लिए। अभी 1913 में जो 2013 में जो संशोधन हुआ है उसमें कलेक्टर से अधिकार को छीन के उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल पे भेज दिया ताकि इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो। जब अगर के हम ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं तो वहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट संतोष जी आ रहा हूं आपके जज बैठते हैं। आ रहा हूं संतोष जी। जी सलाम जी। अगर दो ही लोग एक ही समुदाय के अलग अलग बातें करेंगे तो आपकी जनता को कैसे समझ आएगा कि किसका समर्थन करना है? जनता तो वो जनता इसके वक्फ बोर्ड के बारे में जो राय रखती है, जो समझती है, लेकिन मैंने जो वक्फ एक्ट को पढ़ा है, जो चीजें मैं तो उसमें बात करूंगा। मैं जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदया, इस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मुसलमान समुदाय के अंदर, ये नैरेटिव तो आप बना नहीं रहे, मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्त पर कोई है? वक्त में उसका बेचारे का कोई से है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई से है? आप पूरे देश में, आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कराइए, तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहां हैं? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और